See, in the last lecture, we have done with the Bohr atom in the postulates of the Bohr theory, and I will just revise what are the postulates of the Bohr's theory. The Bohr said that every atom at the center has a positively charged nucleus. Every atom at the center has a positively charged nucleus. Second, Bohr said that electron revolves around the nucleus. Electron revolves around the nucleus in a circular path, and the circular path of the fixed radius and of fixed energy. मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वहां का रेडियस और एनर्जी फिक्स रहेगा. ओके. Then the electron can revolve only in those orbit for which its angular momentum मतलब कितना रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. मतलब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम रहेगा h अपॉन 2 पाई, या रहेगा 2h अपॉन 2 पाई, या रहेगा 3h अपॉन 3 पाई. उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा. The energy of an electron in the orbit does not change with the time. मतलब just जब तक इलेक्ट्रॉन्स को दिए हुए ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब तक उसका एनर्जी चेंज नहीं होगा. करेक्ट. एंड between the revolving electron and the nucleus there is a which force, electrostatic force of attraction, and this electrostatic force of attraction converts into which force, centripetal force, and therefore while revolving around the nucleus electron is not falling into the nucleus. correct. तो ये हमारे बोर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे. आज हम लोग बोर्स थ्योरी का रिजल्ट देखेंगे. So we'll go for the next heading here, that is the next heading today will start with results of Bohr's theory. Result of the Bohr theory. Now what is the first result here? The stationary state for electron are numbered as 1, 2, 3, etc. Stationary state for electron are numbered as 1, 2, 3, etc. 1 minute. The stationary state for electron are numbered as 1, 2, 3, etc. Correct. That is one thing. मतलब अगर हमें n equal to we can write as the first orbit, or we can write as the second orbit, or we can write as the third orbit, or we can write as the fourth orbit. मतलब अगर हमारे पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाद जो पहला ऑर्बिट आएगा उसे 1, सेकेंड ऑर्बिट को 2, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट. सेकेंड थिंग, the radius of stationary state, or we can say radius of orbit is given as the formula. Radius of the orbit is equal to a0 n square upon z. अब ये फॉर्मूला कहां से आया? तो लास्ट टाइम अगर आपको मालूम रहेगा तो हमारे पास दो फॉर्मूले थे.
आई विल जस्ट शो यू कि हमारे पास कौन से फॉर्मूले थे एंड उससे ये उन्होंने कहां से डिराइव किया था. तो हमारे पास इफ यू रिमेम्बर इन द लास्ट लेक्चर एक फॉर्मूला था, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल अपॉन h अपॉन 2 पाई. ये फॉर्मूला एक हमारे पास था. और हमारे पास दूसरा फॉर्मूला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 z इज स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r. ये फॉर्मूला था. तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करके उन्हें ये फॉर्मूला मिला. कौन सा? द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट. So radius of the electron in the nth orbit is what? A0. A0 का एक value constant है. N. What is N stands for? Where N stands for number of orbit. मतलब कौन सा orbit है. And Z stands for atomic number of an atom. Okay. So here N is a number of orbit. कौन सा orbit है? 1, 2, 3. मतलब कौन से ऑर्बिट के लिए आपको रेडियस फाइंड आउट करना है. ऑर्बिट रेडियस 1 के लिए फाइंड आउट करना है, 2 के लिए फाइंड आउट करना है. तो n is a number of orbit and z is called as the atomic number. Okay, atomic number. Then here we can same formula we can write Rn equal to 52.9. मतलब जो A0 यहाँ पे है, A0 की जगह क्या लिख सकते हो आप? 52.9 n स्क्वायर z. और ये जो मुझे रेडियस मिलेगा, इट इज गोइंग टू बी इन व्हिच यूनिट? पिकोमीटर. मतलब अगर मैंने यहाँ पे Rn का वैल्यू 52.9 अगर लिखा, मतलब यहाँ पे A0 अगर मैंने 52.9 लिखा, then we get the answer in which unit? Picometer. But same formula, if I write the A0 as 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, ये कंसेप्ट सेम रहेगा. देन अगर ये फॉर्मूला मैंने अगर यूज कर दिया, देन आई विल गेट द रेडियस इन विच यूनिट? एंगस्ट्रॉम. सो हियर इट इज इन द पिकोमीटर. Picometer, and here it is in angstrom. Okay. तो sometime depending upon the problem, यहाँ पे खाली क्या देखो, n स्क्वायर अपॉन z सेम, n स्क्वायर अपॉन z सेम है. अगर मैंने यहाँ पे 52.9 वैल्यू अगर यूज कर दिया, then I will get the answer in which unit? Picometer. And if I use, yes, if I use the value 0.529, then I get the radius in which unit? Angstrom. Radius. Now here अभी हम लोग अलग अलग ऑर्बिट की रेडियस देखेंगे. So I just write down here for hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए उसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 1. फॉर हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर इज 1. तो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 है, देन आई जस्ट फाइंड आउट द रेडियस इन व्हिच यूनिट? एंगस्ट्रॉम. आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ये फॉर्मूला यूज करोगे तो भी चलेगा, खाली यहाँ पे आपको रेडियस किस में मिलेगा? पिकोमीटर में मिलेगा. और अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो रेडियस किस में मिलेगा आपको? एंगस्ट्रॉम में मिलेगा. तो मैंने अभी फॉर हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 1 आएगा. एटॉमिक नंबर 1 आएगा. तो अभी मैं फॉर्मूला यूज करूंगा Rn. n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट. मुझे फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है. तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल टू 0.529 into फर्स्ट ऑर्बिट स्क्वायर अपॉन z. z इज 1. तो अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा आंसर? 0.529 एंगस्ट्रॉम. बिकॉज मैंने वैल्यू क्या यूज किया था? 0.529. तो इसीलिए हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना आएगा? 0.529 एंगस्ट्रॉम.
सिमिलरली अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट लूंगा, सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस कितना आएगा फिर देखो 0.529 इंटू 0.529 इंटू n स्क्वायर, n मतलब सेकेंड ऑर्बिट स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, z इज एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इक्वल टू अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 0.529 multiply by 2 square is 4 and that will become how much 2.116 angstrom, 2.116. तो what we see फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना आ रहा है 0.529, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस कितना आ रहा है 2.116. तो what we see as we go away from the nucleus the radius of the orbit goes on increasing. देखो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस स्मॉल है, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस लार्ज है, so as we go away from the nucleus radius goes on increasing. Okay, then here we can say for n equal to 3 radius of third orbit 0.529 into n square, third orbit, third square upon 1, that is 0.529, 3 square is 9, 9, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4.761 angstrom. So it is increasing, and just I'll find out the last one, n equal to 4. So radius of the fourth orbit is 0.529, 4 square upon 1 is 0.529 into 4 square is 16, and that is equal to 8.464 angstrom. इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 0.529, यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, देखो ये 5 और यहाँ पे 2.0.5, तो ऑलमोस्ट 4 टाइम ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे 2 और 4 ऑलमोस्ट हाफ, 2.1 4.7, और यहाँ पे मतलब नॉर्मली व्हाट हैपन हियर सी, ये अगर हमारा न्यूक्लियस रहेगा तो फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है n equal to 1, second orbit is very far away from the nucleus, n equal to 2, but third orbit comparatively closer आ जाएगा, n is equal to 3, fourth orbit और भी closer आएगा, n equal to 4, fifth orbit और भी close आएगा, n equal to 5, sixth orbit और भी close आएगा, n equal to 6. So what we see in the beginning, the distance between the orbit is more, but as we go away from the nucleus, the distance between the orbit goes on decreasing, correct? So in the beginning, the distance between the orbit is more, but as we go away from the nucleus, the distance between the orbit goes on decreasing. Okay, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है हमें. अगर आपको रेडियस पिकोमीटर में फाइंड आउट करना है तो 52.9 लेना है, और अगर आपको रेडियस एंगस्ट्रॉम में फाइंड आउट करना है तो 0.529 लेना है, करेक्ट. दूसरा क्या देखा हम लोग ने यहाँ पे पॉइंट, कि फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट में डिस्टेंस ज्यादा है, सेकेंड और थर्ड में उससे थोड़ा कम है, थर्ड और फोर्थ में थोड़ा कम है डिस्टेंस, थर्ड और फोर्थ में और थोड़ा कम है, फोर्थ और फिफ्थ में और कम है. तो एज वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, distance between the orbit goes on decreasing. So I'll just write down the sentence. I'll just write down the sentence here. Note, as we go away from the nucleus, as we go away from the nucleus, distance between the orbit
decreases. So as we go away from the nucleus, the distance between the orbit goes on decreasing. Correct? ये हमारे रेडियस के बारे में हुआ. Now I'll just go for the next heading, एनर्जी के बारे में. Second, the third point I'll write down here, the energy of orbit, or we can say stationary state. The energy of the orbit or the stationary state can be given as the first I will write energy of the electron in the nth orbit. Energy of electron in the nth orbit is minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 Z square upon n square, and the unit is what? Joule per atom. Joule per atom. देखो, energy of the electron in the nth orbit, मतलब first orbit, second orbit, कितना value है? Minus 2.18 into 10 raised to minus 18 Z square upon n square joule per atom. Similarly, energy of the electron in the nth orbit is minus 13.6 Z square upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. यूनिट चेंज हो रहा है. तो देखो यहाँ पे z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये पार्ट सेम है, खाली ये वैल्यूज कांस्टेंट के वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, ये वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, बट यहाँ पे यूनिट क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज आल्सो गिवन बाय द फॉर्मूला minus 1312 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल. देखो ये वैल्यू जो दिए हुए एक सिंगल एटम के लिए, ये वैल्यू एक सिंगल एटम के लिए, लेकिन किसके लिए? किलो जूल पर मोल के लिए. एंड लास्ट, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज minus 2.18 into 10 raised to minus 11 z square upon n square अर्ग पर एटम. अर्ग पर एटम. तो हमें मालूम है जूल अगर मुझे अर्ग में कन्वर्ट करना रहेगा, तो जूल अगर मुझे अर्ग में कन्वर्ट करना, तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग? 10 raised to 7 अर्ग. 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to 7 अर्ग. यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 18 था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय प्लस 7, तो माइनस 11 आ गया. और एक दूसरा कन्वर्जन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Sorry, जूल. तो इसीलिए अगर मुझे जूल से इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे उसे 1 जूल और इसे डिवाइड कर दे, तो 1 minus 13.6 इंटू ये है. तो व्हाट वी कैन डू, तो ये वैल्यूज को लर्न करो. इसे लर्न करना है अलग अलग यूनिट्स के साथ. देखो सब जगह देखोगे तो z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पार्ट कांस्टेंट है. नॉर्मली हम लोग फाइंड आउट करते जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और किलो जूल में. सो दीज आर द 3 वैल्यूज फॉर एनर्जी. अभी हम लोग अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. सो वी कैन से फॉर n इक्वल फॉर फर्स्ट विच एटम? फॉर हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम जब हम लोग बोलेंगे तो हमें मालूम है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 1. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1. देन आई विल राइट हियर n is equal to 1. n is equal to 1 means first orbit. तो एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम एंड विल कैलकुलेट इन दिस यूनिट. ऐसे मालूम है यहाँ पे पावर है,
ये थोड़ा कुछ बहुत ही ज्यादा आ रहा है और यहाँ पे भी पावर, तो मैं सिंपल वाला यूज करूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाला। तो हियर आई राइट द फॉर्मूला, -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। देखो -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो z कितना आ रहा है 1, z स्क्वायर, n का वैल्यू कितना आ रहा है 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा आंसर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना रहेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट E2, सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या आएगा, -13.6 इंटू z स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए सी ऑल विद द वैल्यूज आर ऑब्टेनिंग फॉर व्हिच आइटम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, सो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय orbit number 2, so 2 square. So here we get -13.6 divided by 2 square is 4. और मैं अगर डिवाइड करूंगा यहाँ पे, तो डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा माइनस 1 मिनट, माइनस 3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, -3.4। थर्ड ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 3 अगर लोगे, तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट इज -13.6 इंटू z स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए z मतलब 1 अपॉन थर्ड 3 स्क्वायर, सो इट इज गोइंग टू बी -13.6 अपॉन 9 equal to minus, it is going to be 1.5, approximately 1.5 electron volt. 9 ones are 9, so how many are remaining? 9 5s are 45, 1.5 electron volt. And energy of the electron in the fourth orbit is equal to -13.6 into 1 square divided by 4 square. -13.6, 4 square is 16, that is -0.85 electron volt. Okay, तो normally what we are observing कि इलेक्ट्रॉन अगर हमारा फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा, तो इट रिक्वायर मोर नेगेटिव मतलब लेस एनर्जी। देखो अगर माइनस साइन में कंसिडर करेंगे, तो माइनस में ये नंबर है 13.6 और ये नंबर है -0.85, तो दिस नंबर इज ग्रेटर एंड दिस नंबर इज स्मॉलर। ओके, इसका मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा, तो इट विल रिक्वायर लेस एनर्जी टू रिवॉल्व, मतलब मोर नेगेटिव मतलब लेस एनर्जी। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में रहेगा, इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिवॉल्व। करेक्ट। सो बेसिकली व्हाट वी, एक मिनट, एनर्जी नेगेटिव क्यों, उसका मैं पहले रीजन बताता हूँ आपको। एनर्जी नेगेटिव क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। See why the energy is negative, because यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हैज अ फर्स्ट पॉजिटिव, देन हियर स्टार्टिंग में यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, तो ये अगर हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1, then we are having second orbit n equal to 2, third orbit n equal to 3, fourth orbit, सॉरी नजदीक आएगा थोड़ा, n equal to, यहाँ पे आएगा n equal to 4 और यहाँ पे आएगा n equal to 5। बट नॉर्मली व्हाट हैपन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब एटम के बाहर रहेगा, मतलब अगर हमने देखिए हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इधर है इलेक्ट्रॉन, अगर मतलब इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन इज एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना रहेगा, 0 रहेगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत दूर है, मतलब एटम के आजू बाजू में है ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर बहुत दूर पे रहेगा तो उसका एनर्जी 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो एटम का जो न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में कुछ भी अट्रैक्शन नहीं, देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
मतलब अगर हमने बोला कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्बिट है, लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन इज एट इंफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन इज एट इंफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन इज वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन इज एट इंफिनिटी, हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इंफिनिटी पे, मतलब वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है। तब इलेक्ट्रॉन को, मतलब यहाँ पे अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन अगर हमारा कहाँ पे रहेगा, इंफिनिटी पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी का मतलब वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है, तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं रहेगा। अगर उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एट इंफिनिटी विल बी हाउ मच, जीरो। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी विल बी एट व्हाट, जीरो, मतलब इंफिनिटी पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जीरो है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के पास अगर जाना लगेगा, नजदीक नजदीक जाने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जीरो है और उसमें से अगर आप कुछ निकालोगे तो एनर्जी क्या बचेगा, माइनस। हाँ, अगर मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 2 है, तो 2 में से अगर 1 निकालोगे तो क्या बचेगा, +1, +1 में से 0.5 निकालोगे तो कितना बचेगा, 0.5, 0.5 में से 0.3 निकालोगे तो कितना बचेगा, 0.2, 0.2 निकालोगे तो 0 बचेगा। लेकिन 0 से भी अगर कुछ फोर्स अट्रैक्शन के लिए एनर्जी अगर यूज कर दिया तो एनर्जी हमारा निगेटिव आएगा। एनर्जी कैसे आएगा, निगेटिव। इसलिए यहाँ पे एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट is minus 13.6 electron volt. Energy of the second orbit minus 3.4 electron volt. Third orbit minus 1.5 electron volt and fourth orbit minus 0.85 electron volt. मतलब एनर्जी नेगेटिव क्यों है, बिकॉज एज इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, उनके बीच में क्या स्टार्ट होगा, कूलम्बिक, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जीरो है और जीरो में से भी अगर कुछ यूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कैसे बचेगा, निगेटिव में बचेगा। कैसे बचेगा, निगेटिव में। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, दे हैव हायर एनर्जी, या टूवर्ड, और जो लोअर शेल में उनके पास कैसा है, मोर नेगेटिव, मतलब लोअर एनर्जी। बिकॉज हमें मालूम है फर्स्ट ऑर्बिट का साइज स्मॉल है, तो स्मॉलर ऑर्बिट विल रिक्वायर लेस एनर्जी टू रिवॉल्व, और ऑर्बिट एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, साइज ऑफ द ऑर्बिट गोज ऑन इंक्रीजिंग, सो दे विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिवॉल्व। तो आपको ये समझ में आ रहा है कंसेप्ट, एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? देखो देखो साइन, मैंने क्या बोला यहाँ पे, साइन निगेटिव क्यों है उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो साइन निगेटिव क्यों है, क्योंकि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे रहेगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं रहेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज एट द रेस्ट, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजिशन में, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब उसका एनर्जी जीरो है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की तरफ जाना लगेगा तो ऑर्बिट के जाने के बाद क्या होगा, ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और हमें मालूम होता है कि कोई भी जो एटम में जब अट्रैक्शन होता है तो ड्यूरिंग द अट्रैक्शन द एनर्जी इज रिलीज, ड्यूरिंग द अट्रैक्शन द एनर्जी इज रिलीज, एंड एनर्जी रिलीज इज गिवन बाय विच साइन, माइनस साइन। एनर्जी रिलीज गिवन बाय विच साइन, माइनस साइन। आप ये भी कंसेप्ट यूज कर सकते हो, या दूसरा कंसेप्ट कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ऑलरेडी जीरो है, तो जीरो में से अगर कुछ एनर्जी यूज कर लिया फॉर अट्रैक्शन तो एनर्जी कैसे बचेगा, निगेटिव में बचेगा। कैसे बचेगा, निगेटिव में बचेगा। तो ये हमारा एनर्जी है। सो वी हैव गिवन द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। सेकंड, व्हाट वी हैव सेड कि व्हेन आई गो फ्रॉम lower orbit to the higher orbit, energy goes on increasing. So when I'm going from lower orbit to higher orbit, energy increases. When I go from lower orbit to higher orbit, energy goes on increasing. Okay, ये हुआ। और एक कंसेप्ट अभी मैं कर रहा हूँ इससे रिलेटेड। तो एटलीस्ट यहाँ पे आपको पता चल रहा है एनर्जी का कंसेप्ट क्या है।
कि अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है तो इट विल रिक्वायर लेस एनर्जी, और अगर इलेक्ट्रॉन को हायर एंड हायर ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है तो इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी। एनर्जी नेगेटिव क्यों है? बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 है। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, और उसके कारण इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यूटिलाइज किया जाएगा। तो निगेटिव में 0 में से कुछ यूटिलाइज किया जाएगा तो निगेटिव। ओके, और एक डिस्टेंस। ओके, अभी देखो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, और फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट का जो एनर्जी है विच इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा थर्ड ऑर्बिट जो है उसका एनर्जी है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो अभी देखो मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसे हम लोग हमेशा बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में रहेगा, n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में अगर रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले लिया, हाँ देखो, जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते रहेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते रहेगा तब तक उसका एनर्जी कितना रहेगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब तक। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे जाना पड़ेगा, ओके, तो ये हमारा n इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट, ये हमारा n इज इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट। लेकिन इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे चला जाएगा तो ये हमारा बनेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा तो ये बनेगा हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। कंफ्यूज नहीं होना, देखो ये हमारा ऑर्बिट नंबर, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। ओके, उसके बाद अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? इन द ग्राउंड स्टेट। हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? इन द ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहां से यहां तक जंप कर दिया, एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहां से यहां तक जंप कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड एज विच वन? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से यहाँ पे आ गया डायरेक्टली, देन इट इज कॉल्ड एज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो हमें मतलब एक टर्म्स मालूम होनी चाहिए कि नॉर्मली अगर फर्स्ट ऑर्बिट को हमें क्या बोलना है? ग्राउंड स्टेट बोलना है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ने ग्राउंड स्टेट में से यहाँ पे जंप कर दिया, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में अगर आ गया, तो ये हमारा उसको नाम क्या देना पड़ेगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना पड़ेगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ओके, अभी हमें देखना है कि यहाँ पे एनर्जी चेंज कैसे होगा। अभी देखो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल पे है तो उसका एनर्जी 13.6 है, तो हमारा E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और हमारा E2 कितना है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में अगर जाना है तो कुछ भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके चलेगा क्या? मतलब हमने बोले कि फर्स्ट यहाँ पे उसका एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हाँ उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दो, उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दो, चलेगा क्या? नहीं। उसे एक डेफिनेट, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से अगर एक्साइटेड स्टेट में अगर फर्स्ट में जाना है, या इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट्स में अगर सेकेंड ऑर्बिट में जाना है, सेकेंड ऑर्बिट में, तो कितना एनर्जी लगेगा? तो डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। डेल्टा E का मतलब चेंज इन द एनर्जी, E2 माइनस E1। तो E2 इज हाउ मच? -3.4 माइनस E1 is how much? -13.6. So that is equal to -3.4 plus 13.6 and we'll get here 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को
फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में अगर जाना है, अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में अगर जाना है तो उसे कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा? 10.2। तो तुम अगर बोलेगी कि नहीं मैंने इसको इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी 10 पॉइंट दिया, यहाँ पे जाएगा? नहीं जाएगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी 9.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, यहाँ पे चला जाएगा? नहीं चला जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर अमाउंट का एनर्जी ही लगेगा टू जंप फ्रॉम द लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। इसीलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बोला था कि एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट, एंड स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एज अ क्वांटम। मतलब एनर्जी एक स्मॉल पैकेट में एमिट होगा या स्मॉल पैकेट में एब्जॉर्ब होगा, जबकि नहीं कंटिन्यूअसली नहीं होगा। मतलब एनर्जी एमिशन और एब्जॉर्प्शन विल नॉट ऑकर कंटिन्यूअसली। मतलब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा है। हाँ, अगर कंटिन्यूअसली होगा तो कुछ भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो यहाँ पे चला जाता, कुछ भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ पे चला जाता, लेकिन नहीं हुआ है। So energy absorption and energy emission does not occur continuously. मतलब एनर्जी का एमिशन या एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा है। The energy is absorbed or emitted in the form of small packets of energy, and small packet of energy are called as a quanta. इसका मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में लेके जाना है तो फर्स्ट कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? 10.2। तो ही वो सेकेंड एनर्जी लेवल में चला है। 10.2 से कम एनर्जी दोगे तो नहीं चला जाएगा, या 10.2 से ज्यादा दोगे तो भी नहीं चला जाएगा। तो इसे हम लोग और कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली फर्स्ट एनर्जी लेवल से थर्ड में लेके जाना है तो कितना एनर्जी लगेगा? तो एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, energy of the third is -1.5 electron volt, and then change in the energy is equal to E3 minus E1. E3 minus E1 minus 1.5 minus 13.6 minus, तो -1.5 plus 13.6 equal to, अगर करोगे तो 6 minus 5 is 1, 13 minus 1 is 12, तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी अगर आप दोगे तो मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में है और उससे कितना एनर्जी दोगे आप? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट कहां पे जंप करेगा? कहां पे जंप करेगा? थर्ड ऑर्बिट, मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो देखो ऑर्बिट नंबर अगर लिखना है तो 1 2 3 लिखना है, लेकिन अगर ये ग्राउंड स्टेट है तो ये हमारा क्या रहेगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये हमारा रहेगा सेकंड, बिकॉज समटाइम इन द जेई एंड ऑल दे व्हेन दे आस्क द क्वेश्चन तो वो लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तुम्हें मालूम होना चाहिए एन कितना लेना चाहिए? 2। इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो एन कितना लेना है? 3। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमें फर्स्ट कभी यूज करना है, सेकेंड कभी यूज करना है। ओके, तो यहां से क्या पता चला हमें? energy is always emitted or absorbed in the form of, it is so what we have learned here, note, energy is absorbed or emitted discontinuously, मतलब एनर्जी कंटिन्यूअसली डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स में दिया जाएगा, करेक्ट? तो एनर्जी इज एब्सॉर्ब और एमिटेड डिसकंटिन्यूअसली, ना कि कंटिन्यूअसली, करेक्ट? तो ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। ओके, ये हमारा एनर्जी का रिलेशन। तो हमें एनर्जी के ऊपर क्या देखा कि एनर्जी ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिट्स देखा। दूसरा, एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग देखा। और थर्ड, energy is not absorbed or emitted continuously, but it is given in the form of discontinuously form. And next formula we'll do here, the next point, that is fourth, that is
वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉन का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी तरह हम लोग इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. So I'll just take the next point on the next page. Velocities of electron can also be calculated by using Bohr's theory. Velocity of electron can also be calculated by using what? Bohr's theory. And what is the formula they have given here? The Vn equal to V0 into Z upon N. एनर्जी में था Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, और वेलोसिटी में क्या आएगा? Z upon N आएगा, Z upon N आएगा. And now here the velocity of the electron in the nth orbit, और V की जगह क्या लिख सकते हो? 2.18 into 10 raised to 6 Z upon N मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. ओके, अब मीटर पर सेकेंड में भी मेजर कर सकते हो. या सेम वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज 2.18 into 10 raised to 8 Z upon N सेंटीमीटर पर सेकेंड. मतलब we can measure the velocity of the electron in meter per second, or we can measure the velocity of the electron in centimeter per second. Okay, centimeter per second. Okay, तो यहां से अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. We'll just find out for hydrogen atom. Hydrogen atom मतलब Z is equal to 1. तो सबसे पहले यू विल बी सेइंग कि हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने बोर्स थ्योरी में देखा था कि जो बोर्स थ्योरी है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. मतलब ये बोर थ्योरी जो कंसेप्ट है वो हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है. तो फॉर हाइड्रोजन एटम अगर मैंने Z इज इक्वल टू 1 लिया तो वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट में ये फॉर्मूला यूज करूंगा पहले यहाँ पे. Vn इक्वल टू 2.8 into 10 raised to 6 Z upon N मीटर पर सेकेंड. तो अगर मैंने लिखा रेडियस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ n इक्वल टू 1, मतलब वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1 मतलब वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट. सो फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी कितना आएगा? 2.18 into 10 raised to 6 into Z means atomic number. Atomic number is 1 हाइड्रोजन के लिए. First orbit n is equal to 1, and so if I'll just multiply here, how much I'll get? It is 2.18 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकेंड. मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड कितना है? देखो 2.18 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकेंड, एंड विच इज कंपैरेटिवली क्वाइट हाई. मतलब बहुत बहुत हायर स्पीड है, ये बहुत बहुत हायर स्पीड है. हम लोग सेकेंड ऑर्बिट के लिए भी कैलकुलेट करेंगे. n इक्वल टू 2, सो v2 इक्वल्स टू. सेकेंड ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी क्या आएगा? तो क्या लिखोगे? 2.18 into 10 raised to 6 into Z is the atomic number, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, n is the ऑर्बिट नंबर is 2. तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 2 से डिवाइड करोगे तो 1.09 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकेंड. मतलब वेलोसिटी गोज ऑन. देखो फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी ज्यादा है, सेकेंड ऑर्बिट में वेलोसिटी कम है. तो व्हाट वी से? नोट as we go
away from the nucleus, as we go away from the nucleus, velocity of electron, velocity of electron in orbit goes on decreasing. So as we go away from the nucleus, the velocity of the electron in the orbit goes on decreasing. Correct? तो फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी कितना आ रहा था 2.18 into 10 power 6, और ये बहुत हायर वैल्यू है, बहुत हायर, बिकॉज नॉर्मली अपना लाइट का स्पीड ही कितना है 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब उसके ऑलमोस्ट नियर बाय इतने स्पीड से इलेक्ट्रॉन एटम में रिवॉल्व हो रहा है. तो अगर मैं इसे किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा 2.18 into 10⁻⁶ into 10⁻³ किलोमीटर पर सेकेंड. खाली एक जस्ट आइडिया आने के लिए. यहाँ पे कितना होगा +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2.18 into 10⁻³ मतलब 2180 किलोमीटर पर सेकेंड. मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से स्पीड से मूव करेगा, देखो 2180 किलोमीटर पर सेकेंड, इतने हायर स्पीड से वो चलेगा. तो ये बहुत बहुत डिफिकल्ट, मतलब ये कुछ बहुत ही ज्यादा स्पीड है. ये ध्यान में क्यों रखना कि आगे चल के हमें एक पोस्टुलेट्स करना है तब पता चलेगा. मतलब जस्ट रिमेंबर हियर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व विथ अ वेरी हाई स्पीड इन द एटम. ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है. ये खाली मैंने आपको एक कंसेप्ट आगे हम लोग यूज करेंगे तब लगेगा. तो देखो कितना स्पीड है 2180 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इतना किलोमीटर कवर करेगा, इतना स्पीड ज्यादा है. ओके, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे वेलोसिटीज भी देखा. मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन मतलब ओके बोर्स थ्योरी का क्या क्या देखा. बाय यूजिंग बोर्स थ्योरी वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, we can calculate the energy of the revolving electron, and also we can calculate the velocity of the revolving electron. कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं. और एक बोर ने पॉइंट क्या बोला था यहाँ पे, दैट द नेक्स्ट पॉइंट. Turn the page. Bohr theory can be applied to hydrogen like species. ये जो हमारा बोर्स थ्योरी है, इट कैन बी अप्लाइड टू व्हाट, हाइड्रोजन लाइक मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है. तो जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है उनके लिए ही एप्लीकेबल है. सो बोर थ्योरी कैन बी अप्लाइड फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. फॉर एग्जाम्पल इसके लिए एप्लीकेबल है. देखो सबसे पहले अगर हम लोग हीलियम लिखेंगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 आए, और आई जस्ट राइट हियर इट इज एप्लीकेबल व्हिच वन, हीलियम +1. इट इज एप्लीकेबल फॉर लिथियम 2+. इट इज एप्लीकेबल फॉर बेरिलियम 3+. इनके लिए एप्लीकेबल है, एंड सो ऑन. मतलब ये बोर थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, और हाइड्रोजन के साथ साथ किसके लिए एप्लीकेबल है, हीलियम +1 के लिए, लिथियम 2+ के लिए, एंड बेरिलियम 3+ के लिए एप्लीकेबल है. करेक्ट. तो अभी देखो यहाँ पे हीलियम +1 देखो, हीलियम +1 क्योंकि देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है,
एटॉमिक नंबर 2 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 2 है, तो इनके लिए बोर थ्योरी एप्लीकेबल नहीं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा हीलियम +1, हीलियम +1 का मतलब हीलियम अपने पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। हीलियम +1 का मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, तो यहाँ पे बोर थ्योरी एप्लीकेबल है, ये हीलियम के लिए हुआ। लिथियम देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है, तो लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो इलेक्ट्रॉन 3, तो इनके लिए बोर थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिथियम 2+ लिखा, 2+ का मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2+ का मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां से एक और यहां से एक, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो अभी हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 1 है, तो बोर थ्योरी एप्लीकेबल है। मतलब लिथियम एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम आपको गलती से ऐसा दिया कि लिथियम के लिए बोर थ्योरी एप्लीकेबल है क्या, तो नहीं। किसके लिए बोर थ्योरी एप्लीकेबल है, लिथियम 2+ के लिए एप्लीकेबल, लिथियम एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं। नेक्स्ट बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर 4 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन के लिए बोर थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा बेरिलियम 3+, 3+ का मतलब लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस होगा, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो एक बचेगा, तो नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इज 1, तो यहाँ पे बोर थ्योरी एप्लीकेबल है। तो ये बोर थ्योरी का एक लिमिट प्लस पॉइंट था, ये बोर थ्योरी खाली किसके लिए एप्लीकेबल थी, ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब ओनली दो स्पीसीज विच कंटेन्स व्हाट 1, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। He+ के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम 2 के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और बेरिलियम 3 के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनके लिए ही बोर थ्योरी एप्लीकेबल। ओके, ये बोर थ्योरी का कंसेप्ट। अभी इसके ऊपर के 1 2 न्यूमेरिकल करेंगे तो और हमारा पार्ट 2 3 न्यूमेरिकल करेंगे। एक क्वेश्चंस दिया हुआ है पेज नंबर 42, प्रॉब्लम नंबर 4.6। ओके, और इन्हें क्या बोला है, आपके सामने प्रॉब्लम रहेगा या मैं आई जस्ट टेल यू ऑल हियर कि प्रॉब्लम में क्या बोला है। देखो यहाँ पे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन how many electrons are present in 1H2, helium 2 and helium plus, and which of these are hydrogen like species। तो सबसे उन्होंने क्या किया कि मतलब उन्होंने कौन कौन से एग्जांपल दिए, देखो दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ 1H1, 1H2, and then they have given what, helium 2, and then they have given here helium plus 1, ये 3 स्पीसीज दिए। उन्होंने बोला कि तीनों में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट वन 1H2 का, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 1 आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 आएंगे। 1H2 ये एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, एटॉमिक नंबर Z इज 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। देन सेकेंड हीलियम का एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। और यहाँ पे हीलियम प्लस है,
हीलियम प्लस। अब हीलियम प्लस मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन, देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, पर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में एक ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बिकॉज हीलियम प्लस मतलब लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 2 था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 थे, लेकिन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर इज 1। हीलियम प्लस 1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, ये पहला हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले हमें क्या बोला था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 है, हीलियम एटम में इलेक्ट्रॉन 2 है, और हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन 1 है। और नेक्स्ट उन्होंने पूछा विच ऑफ दीज आर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कौन है, इसमें से हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कौन है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 है, मतलब कौन 1H2, ये दूसरा इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक कौन आएगा He प्लस, ये तो विच आर द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज 1H2 एंड हीलियम प्लस 1, दे आर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट और एक न्यूमेरिकल है, एक पेज नंबर 42, प्रॉब्लम नंबर 4.7, page number 42, problem number 4.7. I'll share the problem. I'll write down here. Calculate the radius and energy associated with the first orbit of helium plus. देखो, calculate the radius and energy associated with the first orbit. First orbit मतलब n equal to 1, for which one helium plus. तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि हीलियम प्लस जो है वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है कि नहीं है, तो हमें I'll just write down helium, atomic number is 2, electronic configuration is 2, so how many electron, 2 electrons, ये नहीं, लेकिन He प्लस मतलब 1, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा He प्लस इज हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, करेक्ट। तो अभी हम उसका क्या है कैलकुलेट, रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला क्या था, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इक्वल टू, अभी हमारे पास देखो रेडियस के दो फॉर्मूले थे, मैं दोनों शेयर करता हूँ आपके साथ। रेडियस का फॉर्मूला 1 मिनट, देखो रेडियस का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला हमारे पास है, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको पिकोमीटर में मिल जाएगा,
ये फॉर्मूला मिलेगा तो आर्मस्ट्रांग में मिल जाएगा, करेक्ट, दोनों में से कोई भी एक, बट यू विल यूज दिस वन, पिकोमीटर वन. तो रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज गिवन बाय व्हिच फॉर्मूला, 52.9 n स्क्वायर अपॉन z. अभी सबसे पहले देखो हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है, हीलियम के लिए, और ऑर्बिट 1 है, ऑर्बिट 1 है तो यहाँ पे आएगा 52.9, ऑर्बिट 1 है तो फर्स्ट स्क्वायर, और हीलियम है, और हीलियम का एटॉमिक, देखो हीलियम प्लस बोला लेकिन हीलियम प्लस का एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर 2, करेक्ट. सो 52.9, n मतलब ऑर्बिट नंबर इज 1 एंड द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द हीलियम इज 2. देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 है लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो एटॉमिक नंबर 2, तो हियर विल राइट 52.9 डिवाइडेड बाय 2, अगर करोगे तो कितना आएगा, 0 सॉरी 2 2s are 4, 2 2s are 4, 1 is remaining, 2 6s are 12, 2 4s are 8 and 5 picometer. So 46.45 picometer ये रेडियस आ गया. ओके, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, एनर्जी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे रेडियस कौन से ऑर्बिट के लिए था, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए. एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट. अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट के लिए 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन उसमें से हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जूल वाला. विल यूज व्हिच फॉर्मूला, जूल. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला इन द जूल, ये -2.18 into 10 power -18 z square upon n square joule per atom. I'll use energy of the electron -2.18 into 10 raised to -18 z square upon n square joule per atom. ये फॉर्मूला है. अगेन हियर हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, -2.18 into 10 raised to power -18 into z square, atomic number of helium 2, atomic number of helium is 2 and first orbit मतलब 1 square. So here I will have -2.18 into 10 raised to power -18 into 4, और अगर आप 2 square is 4, 1 square 1, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे -2.18, सॉरी मल्टीप्लाई करता हूं मैं यहाँ पे, -2.18 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो कितना आएगा, 8 4s are 32, 4 plus 3 7, 4 2s are 8, so minus, so here we get -8.72 joule per atom. This is the energy of the electron in the first orbit for which atom, helium atom. हीलियम प्लस 1 के लिए, हीलियम प्लस 1 के लिए ये एनर्जी. तो इस तरह से by using the Bohr theory we can calculate the radius, we can calculate the energy and we can calculate the velocity of electron in an orbit. Okay, तो ये हमारा बोर थ्योरी का पार्ट हो गया. अभी आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है क्या? No sir, no doubt.